चैप्टर 4 क्या है? क्लाइमेट। चैप्टर 4 क्लाइमेट। वेदर कंडीशंस undergo notable changes in different seasons due to shifts in various elements such as temperature, pressure, wind direction and speed, humidity and precipitation. The concept of monsoon pertains to the climate resulting from seasonal wind direction reversal. India experiences a hot monsoonal climate typical of South and Southeast Asia. Concept of weather and climate. Climate is average of the weather conditions. Climate क्या है? Climate is the average. Climate is the average of weather condition over a longer time. Whereas weather क्या है? तो weather refers to the current state of the atmosphere. Weather refers to the current state of the atmosphere. वेदर कैन चेंज विद इन ए डे और ए वीक. वेदर जो है चेंज कर सकता है विद इन अ डे और अ वीक, वाइल क्लाइमेट चेंजेस मोर स्लोली एंड मे नॉट बी नोटिस्ड अंटिल 50 years और मोर. यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द मानसून क्लाइमेट. मानसून क्लाइमेट highlights India's unity with the Southeast Asian region. While the monsoon climate unifies, it's important to acknowledge its regional differences in weather and climate. Regions like Kerala and Tamil Nadu have distinct climates from Uttar Pradesh and Bihar. Yet all share a monsoon type of climate. India's climate showcases various regional variation in wind patterns, temperature, rainfall, seasonal rhythms and moisture levels. Temperature variations across India are remarkable. Summer temperature can reach 55 degrees Celsius in western Rajasthan. Winter can drop -45 degrees. ठीक. चूरू इन राजस्थान कैन रिकॉर्ड 50 डिग्री सेल्सियस इस जून, वाइल तवांग इन अरुणाचल प्रदेश माइट टच 19 डिग्री सेल्सियस. These instances highlight significant seasonal temperature variation between place and region. Day-night temperature difference also vary. Kerala and the Andaman Island may show a mere 7 degree to 8 degree Celsius gap. In contrast, the Thar Desert can experience substantial shift, with daytime 50 degree Celsius temperatures dropping to 15 degrees Celsius to 20 degrees Celsius at night. Regional variations in precipitation. Precipitation variations exist in India with snowfall in the Himalayas and rainfall in the rest of the country. कहता है कि प्रेसिपिटेशन वेरिएशन एग्जिस्ट करता है इंडिया में किस चीज़ की वजह से? तो स्नोफॉल जो हो रहा है हिमालयाज़ में और रेनफॉल जो हो रहा है रेस्ट ऑफ द कंट्री में. प्रेसिपिटेशन टाइप एंड अमाउंट वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस रीजन्स. चेरापूंजी और मौसीनरम इन मेघालय रिसीव ओवर 1080 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, वाइल जैसलमेर इन राजस्थान गेट ओनली अबाउट 9 सेंटीमीटर. तो कहाँ 1080 सेंटीमीटर मौसीनरम को मिल रहा है, चेरापूंजी और मौसीनरम को मिल रहा है मेघालय में. वहीं राजस्थान के जैसलमेर में मात्र 9 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है. टूरा इन मेघालय रिसीव्स ए डेज वर्थ ऑफ रेनफॉल इक्विवेलेंट टू 10 years ऑफ रेनफॉल इन जैसलमेर. तो मेघालय में एक जगह है टूरा जहाँ एक दिन में इतना बारिश होता है जितना जैसलमेर में 10 साल में होता है. द नॉर्थ वेस्ट हिमालय एंड वेस्टर्न डेजर्ट हैव लेस देन 10 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल. नॉर्थ वेस्ट हिमालय, ठीक है. नॉर्थ वेस्ट हिमालय मतलब वही अफगानिस्तान वाला रीजन.
एंड वेस्टर्न डेजर्ट्स। तो यही राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हैव लेस देन 10 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, वेयर एज मेघालय गेट्स ओवर 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। द गंगा डेल्टा एंड उड़ीसा कोस्टल प्लेन experience frequent rain bearing storms in July and August, while the Coromandel coast remains mostly dry during this time. Rainfall generally occurs from June to September in most part of the country except for Tamil Nadu's coastal area, where it starts in early winter. Despite these variations, India's climate maintains a मॉनसूनल रिदम एंड कैरेक्टर। लेकिन याद रखना कि इंडिया का क्लाइमेट अगर पूछेगा कैसा है तो मॉनसूनल रिदम। कैसा है क्लाइमेट? मॉनसूनल रिदम मतलब मॉनसून क्लाइमेट है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कौन कौन फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है इंडिया के क्लाइमेट को? तो पहला तो हो गया लैटिट्यूड। इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन the Tropic of Cancer runs across the center of India. As a result, the northern half of the India is in subtropical and temperate zone, whereas the southern section of the country south of the Tropic of Cancer is in tropical zone. ठीक। Due to its proximity to the equator, the tropical zone यानी कि साउथ वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, क्योंकि इक्वेटर तो और नीचे होगा ना, has year-round high temperatures with limited daily and yearly range. Due to its distance from the equator, the region north of the Tropic of Cancer, जो नॉर्थ वाला है वो तो थोड़ा सा दूर है इक्वेटर से, has severe climate with an extensive range of daily and yearly temperatures. अब आ जाइए हिमालयन माउंटेन्स भी एक फैक्टर है। It effectively serves as a climate barrier, shielding the subcontinent from the chilly northern winds. क्या करता है हिमालय? तो जो उधर यूरोप तरफ से जो चिली नॉर्दर्न विंड आता है उससे इंडिया को रोक लेता है, इंडिया में उसको आने नहीं देता है। These Arctic winds that sweep through Central and Eastern Asia have their origins there. The monsoon winds are also trapped by the Himalayas. Monsoon winds are also trapped by the Himalayas, which makes them lose moisture within the subcontinent. तो मानसून विंड जो है वो भी ट्रैप्ड हो जाता है हिमालय से, और विच मेक्स देम लूज मॉइस्चर विद इन द सब कॉन्टिनेंट। तो इससे क्या होता है, उसका जो मॉइस्चर जो वो अपने साथ कैरी करता है वो उधर ही रह जाता है, हिमालय की वजह से, हिमालय से टकरा के उधर ही रह जाता है। एक और फैक्टर है जो क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, उसे डिस्टेंस ऑफ लैंड एंड वाटर। क्या है? डिस्टेंस ऑफ लैंड एंड वाटर है। इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय इंडियन ओशियन ऑन इट्स साउदर्न साइड। इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय इंडियन ओशियन ऑन इट्स साउदर्न साइड एंड सराउंडेड बाय, तो इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय द इंडियन ओशियन ऑन द साउदर्न साइड एंड सराउंडेड बाय कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ। लैंड एंड वाटर हीट अप और कूल डाउन एट डिफरेंट रेट्स। समझ रहे हैं? मतलब इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन है यानी कि वाटर है, वही अगर हम लोग नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में हिमालय है मतलब माउंटेन यानी कि लैंड है। और हम लोग को पता है कि लैंड और वाटर जो है वो हीट और कूल डाउन होता है डिफरेंट रेट पे, तो रिजल्टिंग इन वेरीड टेम्परेचर पैटर्न। तो इसीलिए नॉर्थ और साउथ में थोड़ा अलग अलग टेम्परेचर पैटर्न देखने को मिलता है। दिस अनइवन हीटिंग जनरेट्स डिस्टिंक्ट एयर प्रेशर जोन्स। ये जो अनइवन जो हीटिंग पैटर्न है वह एक डिस्टिंक्ट एयर प्रेशर जोन बना देता है अराउंड इंडिया, लीडिंग टू चेंजिंग वेदर कंडीशन। और इसके वजह से क्या होता है, चेंजिंग वेदर कंडीशन जो है जनरेट हो जाता है। दीज वेरिएशंस इन एयर प्रेशर जोन्स इन्फ्लुएंस मानसून विंड्स। दीज वेरिएशन, इस वेरिएशंस के कारण, मतलब एयर प्रेशर जोन में इस तरह का जो वेरिएशन होता है
वह इन्फ्लुएंस करेगा मॉनसून विंड को। किसको इन्फ्लुएंस करेगा? मॉनसून विंड को, काउजिंग देम टू रिवर्स द डायरेक्शन। अब है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कोस्टल रीजन विथ लॉन्ग कोस्ट लाइन हैव अ मोर स्टेबल क्लाइमेट। कह रहा है कि कोस्टल रीजन विथ लॉन्ग कोस्ट लाइन, जिसका लॉन्ग कोस्ट लाइन क्या है? लंबा है, लॉन्ग कोस्ट लाइन्स, हैव अ मोर स्टेबल क्लाइमेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। ठीक, कोस्टल रीजन जिसका लॉन्ग कोस्ट लाइन है उसका मोर स्टेबल क्लाइमेट है। क्यों है? तो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। Inland areas being farther from the sea experience more extreme climates. The seasonal contrast in weather at places in the interior of the country such as Delhi, Kanpur and Amritsar can be observed. तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी एक फैक्टर है। एक फैक्टर है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्यों है और कैसे है? तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ते जाएगा टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर घटते जाएगा। पहाड़ी एरिया में हम लोग जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे तो कैसा रहता है टेम्परेचर? है डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। माउंटेनियस रीजन्स आर कूलर। वही चीज़ बोल रहा है कि जो माउंटेनियस रीजन्स है वो क्या है? कूलर है। किस चीज़ से ज़्यादा कूलर है? प्लेन से ज़्यादा है। साउदर्न और नॉर्दर्न नहीं होता है, क्योंकि माउंटेन तो दोनों जगह है। तो माउंटेनियस रीजन्स आर कूलर देन प्लेन्स। फॉर इंस्टेंस बोलता है कि आगरा एंड दार्जिलिंग आर ऑन द सेम लैटिट्यूड। आगरा और दार्जिलिंग जो है वो दोनों क्या है? सेम लैटिट्यूड पे है। इसके बावजूद दार्जिलिंग जो एक्सपीरियंस करता है मच कूलर टेम्परेचर। इसके बावजूद दार्जिलिंग में कूलर टेम्परेचर है, क्योंकि वहाँ का एलिवेशन जो है क्या है? ड्यू टू हाइयर एलिवेशन। अब एक फैक्टर है रिलीफ। द टेम्परेचर, एयर प्रेशर, wind speed and direction, as well as the total volume and distribution of rainfall are all influenced by India's physiography or relief. ठीक, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड स्पीड, डायरेक्शन as well as total volume and distribution of rainfall are all influenced by India's physiography or relief. The southern plateau is dry. Southern plateau क्या है? ड्राई है, because of its leeward location along the western Ghats, whereas the windward portion of the western Ghat and Assam receive considerable rainfall around June to September. इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज ए रीजन ऑफ लो प्रेशर सिचुएटेड एट द इक्वेटर वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज काउजिंग एयर टू राइज। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? तो रीजन ऑफ लो प्रेशर है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? रीजन ऑफ क्या है? रीजन ऑफ लो प्रेशर है। और कहाँ सिचुएटेड है रीजन ऑफ लो प्रेशर? इक्वेटर के पास है। वेयर ट्रेड विंड, वहाँ पे क्या होता है? कन्वर्ज होता है, और उसके वजह से एयर क्या होगा? राइज होगा। इन जुलाई द ITCZ इज फाउंड बिटवीन लैटिट्यूड 20 डिग्री to 25 डिग्री नॉर्थ।
जुलाई में ITCZ जो है 20 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाया जाता है। और यह किसका है लैटिट्यूड? तो गैंगेटिक प्लेन का। एंड इज सम टाइम रेफर टू एज मानसून ट्रू, और इसी को मानसून ट्रू भी कहा जाता है। दिस मानसून ट्रू फैसिलिटेट्स द क्रिएशन ऑफ अ थर्मल लो प्रेशर एरिया ओवर नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। The ITCZ movement caused the southern तो ITCZ movement causes the southern hemisphere trade wind to cross the equator around longitude 40 degree north to 60 degree north due to the Coriolis force। Coriolis force की वजह से क्या होगा? These trade winds शिफ्ट डायरेक्शन। कोरियोलिस फोर्स की वजह से इस तरह का जो ट्रेड विंड है अपना डायरेक्शन शिफ्ट कर लेगा, ब्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। ठीक, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ट्रेड विंड जो है क्या करेगा? डायरेक्शन शिफ्ट कर लेगा, ब्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक आ जाएगा, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। इन द विंटर सीजन द ITCZ शिफ्ट साउथवर्ड, लीडिंग टू अ रिवर्सल ऑफ विंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ एंड साउथ वेस्ट नोन एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून्स। नेचर ऑफ इंडियन मानसून। Nature of Indian monsoon. By conducting systematic analysis of rainfall pattern in the South Asian region, researchers have made strides in comprehending the fundamental causes and distinguishing features of the monsoon. The investigation has shed light on critical aspects of the monsoon, such as द ऑनसेट ऑफ द मानसून, ब्रेक इन द मानसून। दो चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है। तो ऑनसेट ऑफ द मानसून, मानसून का शुरुआत कैसे होगा? तो पहला है लैंड एंड सी हीटिंग इन्फ्लुएंस। क्या है पहला? लैंड एंड सी हीटिंग इन्फ्लुएंस। In late 19th century, it was widely believed that the movement of monsoon winds towards the subcontinent was driven by the uneven heating of land and sea during the summer month. Intense heating during the month of April and May, when the sun is directly over the Tropic of Cancer. The large landmass in the northern Indian Ocean experiences significant heating. This intense heating results in the formation of powerful low pressure area in the northwestern part of the subcontinent. Simultaneously, the southern region of the Indian Ocean retains higher atmospheric pressure due to slower water heating, establishing a low pressure zone that attracts southeast trade wind from the equator. ठीक, तो पहला क्या है? लैंड एंड सी हीटिंग इन्फ्लुएंस, उसके वजह से हुआ। फिर है कंट्रीब्यूशन टू ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट, ITCZ शिफ्ट। दीज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ।
साउथ वेस्ट मानसून फॉर्मेशन, साउथ वेस्ट मानसून फॉर्मेशन कैसे होगा? द साउथ वेस्ट मानसून कैन बी सीन एज ए continuation of the southeast trade winds which gets redirected towards the Indian subcontinent after crossing the equator. These winds cross the equator within the range of longitude 40 degree east to 60 degree east. These winds cross the equator within the range of longitude 40 degree east to 60 degree east. ITCZ shift and jet stream withdrawal. The shift in the ITCZ position is also connected to the withdrawal of the westerly jet stream from its location south of the Himalayas, affecting the northern Indian plain. The easterly jet stream becomes prominent around latitude 15 degree north, and its emergence is responsible for initiating the powerful burst of the monsoon in India. Entry of monsoon in India. The southwest monsoon typically begins over the Kerala coast by 1st June. It swiftly advances to cover areas like Mumbai, Kolkata between June 10th and 13th. By mid-July, the southwest monsoon envelops the entire subcontinent, marking the full arrival of the monsoon season. तो ये सब हो गया हमारा ऑनसेट ऑफ द मानसून, यानी कि मानसून आता कैसे है, क्यों, ठीक, कैसे कैसे फैलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक इन द मानसून। तमिलनाडु में मानसून अभी नहीं आएगा, कब आएगा? विंटर में। ब्रेक इन द मानसून। इफ रेन does not fall for 1 or more weeks during the southwest monsoon period following few days of rain, then it is referred to as break in the monsoon. क्या कह रहा है कि if rain does not fall for 1 or more week, अगर मान लीजिए कि rain does not fall for 1 or more week during the southwest monsoon, तो उसको क्या बोला जाएगा? ब्रेक इन द मानसून। उसको क्या बोला जाएगा? ब्रेक इन द मानसून बोला जाएगा। थ्रू आउट द रेनी सीजन दिस ड्राई पीरियड्स आर रादर कॉमन. These breaks in the various areas are the result of several causes. क्या कॉज है भाई इस तरह के ब्रेक का? तो इफ रेन बियरिंग स्टॉर्म्स आर नॉट फ्रीक्वेंट इन द ITCZ, फ्रीक्वेंटली अगर नहीं है, रेन बियरिंग मतलब जिस स्टॉर्म में रेन बियर करने का क्षमता है अगर वो फ्रीक्वेंटली नहीं आ रहा है, or the monsoon throw over the area, showers in northern India are likely to fall. During days when winds blow parallel to the shore, dry spells occur over the west coast. अब एक कंसेप्ट है अल नीनो, अल नीनो एंड द इंडियन मानसून। अल नीनो का इंडियन मानसून से क्या लेना देना है भाई? तो अल नीनो इज ए कम्प्लेक्स वेदर फेनोमेना। अल नीनो क्या है? इज ए कम्प्लेक्स वेदर फेनोमेना अकरिंग एवरी 3 to 7 years। अल नीनो होता है हर 3 से 7 साल में, काउजिंग वेरियस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ग्लोबली
इंक्लूडिंग ड्राउट एंड फ्लड। तो 3 से 7 साल में आएगा और इसके वजह से क्या होगा, एक्सट्रीम वेदर होगा। और एक्सट्रीम वेदर का मतलब क्या होगा, नॉट नॉर्मल वेदर। तो एक्सट्रीम वेदर में क्या होगा, ड्रॉट आएगा, फ्लड आएगा, मतलब जो नॉर्मल वेदर होता है वो नहीं होगा, अब नॉर्मल होगा। तो अब नॉर्मल वेदर से क्या आएगा, ड्रॉट आएगा, फ्लड आएगा। यानी कि अल नीनो जो है ये एक नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। इट इज़ नॉट गुड, अल नीनो इज नॉट गुड। कब कब आएगा, 3 से 7 साल में आएगा एक बार। अल नीनो जो है इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स। अल नीनो में क्या क्या है, तो ओशियनिक और एटमॉस्फेरिक एलिमेंट है। वार्म ओशियन करेंट्स अपीयर ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू in the eastern Pacific and influence weather pattern worldwide, including India. It is an extension of the warm equatorial current, temporarily replaced by the old Peruvian or Humboldt current. The Humboldt current raises water temperature along the Peruvian coast by around 10 degrees Celsius, leading to significant effects. It causes a distortion in equatorial atmospheric circulation. Irregularities in seawater evaporation occurs. The warmer water reduces plankton levels, subsequently affecting the fish population. The term El Nino translates to child Christ. अल नीनो का क्या हुआ ट्रांसलेशन, चाइल्ड क्राइस्ट, ड्यू टू इट्स अक्रेंस अराउंड क्रिसमस इन दिसंबर विच इज समर इन पेरू, साउदर्न हेमिस्फीयर में। इट इज एम्प्लॉयड इन इंडिया फॉर प्रिडिक्टिंग लॉन्ग रेंज मानसून रेनफॉल पैटर्न्स। इन 1990 to 91 ए स्ट्रॉन्ग अल नीनो इवेंट caused a delay in the onset of the southwest monsoon across most of India, ranging from 5 to 12 days. The rhythm of the season. The rhythm of the season. There are 4 seasons which are recognized by the मेटेरोलॉजिस्ट। 4 सीजन। पहला कोल्ड वेदर सीजन, पहला क्या है, कोल्ड वेदर। दूसरा क्या है, हॉट वेदर सीजन। तीसरा है साउथ वेस्ट मानसून, तीसरा है साउथ वेस्ट मानसून सीजन। और चौथा हो जाएगा रिट्रीटिंग मानसून सीजन। टोटल 4 तरह का है। कोल्ड वेदर सीजन क्या है, तो कोल्ड वेदर सीजन में टेम्परेचर, द कोल्ड वेदर सीजन टिपिकली बिगिंस बाय मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। Mean daily temperature remains below 21 degrees Celsius across most part of the northern India. Night temperatures can drop significantly even below freezing point in Punjab and Rajasthan. अब आ जाइए काउजेज ऑफ एक्सेसिव कोल्ड। काउज ऑफ एक्सेसिव कोल्ड क्या है, तो स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान being distant from the sea experience a continental climate.
ई जो रीजन क्या है एक्सेसिव कोल्ड का, तो स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। ई जो है सी से क्या है बीइंग डिस्टेंट, एक्सपीरियंस ए कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ए स्नोफॉल इन द नियर बाई हिमालयन रेंज, जो नियर बाई हिमालयन रेंज में जो स्नोफॉल होता है, दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द कोल्ड वेव कंडीशन, उसके वजह से भी ठंड यहाँ पे ज़्यादा पड़ता है। कोल्ड विंड्स फ्रॉम द कैस्पियन सी, कोल्ड विंड कहाँ से आता है कैस्पियन सी से, एंड तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान से जो कोल्ड विंड आता है वह साथ में कोल्ड वेव लाता है, फ्रॉस्ट लाता है और फॉग लाता है इन द फरवरी ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब है पेनिनसुलर रीजन कॉन्ट्रास्ट। पेनिनसुलर रीजन कॉन्ट्रास्ट क्या है, तो पेनिनसुलर रीजन लैक्स अ डिस्टिंक्ट कोल्ड वेदर सीजन। Coastal areas have a stable temperature pattern due to the sea's moderating influence and proximity to the equator. एग्जाम्पल है कि तिरुवनंतपुरम मीन मैक्सिमम टेम्परेचर इन जनवरी इज 21 डिग्री सेल्सियस, while in June it is 29.5 डिग्री सेल्सियस. Western Ghats hills have relatively lower temperatures. फिर एक फैक्टर है प्रेशर एंड विंड्स. बाई दिसंबर 22 द सन इज वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउदर्न हेमिस्फेयर. दिसंबर 22 तक क्या हो जाएगा, द सन इज वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउदर्न हेमिस्फेयर. Weak high pressure prevails over the northern plain, slightly lower pressure in South India. Wind blows from northwestern high pressure to low pressure over the Indian Ocean. Wind directions are westerly, northwesterly in Ganga Valley, northerly in Ganga Brahmaputra Delta, and northeasterly over the Bay of Bengal. Shallow cyclonic depressions originate in the East Mediterranean Sea, moving across West Asia, Afghanistan, Pakistan, and impacting northwestern India. These depressions gather moisture from the Caspian Sea and Persian Gulf, affecting northwestern India. Westerly jet streams guide these depressions across West Asia, influencing their path towards the India. Rainfall. Winter monsoon generally don't bring significant rainfall due to low humidity and anti-cyclonic circulation. Exception क्या है, तो some region experience winter rainfall. Northwest India gets weak temperate cyclones from the Mediterranean Sea, benefiting rabi crops. Central India and northern part of the southern peninsula occasionally receive winter rainfall. Northeastern India, particularly Arunachal Pradesh and Assam, receive modest winter rainfall. And northeast monsoon in October and November bring heavy rainfall to Tamil Nadu coast, Southern Andhra Pradesh, Southeast Karnataka and Southeast Kerala. Understanding the monsoon. On the basis of information gathered on land, in the sea and in the upper atmosphere, efforts have been made to understand the nature and mechanism of the monsoon. One way to determine the strength of the southwest monsoon wind of the southern oscillation is to compare the pressure at Tahiti in French Polynesia, East Pacific, approximately 20 degrees south and 140 degree west, with Port Darwin in northern Australia. The Indian Meteorological Department (IMD)
यूजेस 16 इंडिकेटर्स। टोटल कितना इंडिकेटर यूज करता है? 16 इंडिकेटर टू प्रेडिक्ट पोटेंशियल मॉनसून बिहेवियर।